प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आज आसनसोल में पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर भाजपा की रैली में हिस्सा लिया। आश्रम मोड़ से गिरजा मोड़ तक निकली इस रैली में भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे। रैली के बाद शुभेंदु ने जनसभा को संबोधित किया और टीएमसी ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस टीएमसी के इशारे पर काम कर रही है, जिसे अब ममता पुलिस कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया, जो टीएमसी की बौखलाहट दिखाता है। शुभेंदु ने भिरंगी मोड़ पर काले झंडे दिखाए जाने को टीएमसी के डर का सबूत बताया। उन्होंने टीएमसी नेताओं, खासकर पश्चिम बर्दवान के नेता और उनके बेटे पर भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों कमाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी द्वारा बाढ़ के लिए डीवीसी को जिम्मेदार ठहराने पर पलटवार करते हुए शुभेंदु ने कहा कि ममता को पहले ये बताना चाहिए कि बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने क्या तैयारियां की थी। এবং দক্ষিণ কলকাতা উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতিকে যেভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে কালীঘাট থেকে, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এবং তাই তারা রাজ্য সভাপতি ভারত সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুকান্ত বাবু, একজন ডাক্তার, অত্যন্ত প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব, যিনি লন্ডনে মমতা ব্যানার্জির চিটিংবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, তার বাড়িতে তার আমন্ত্রণে দেখা করতে গেছিলেন। যেহেতু কালীঘাট এলাকা কার্যত পিসি ভাইপোর পৈতৃক সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, 35টা প্লট কিনে নিয়েছে, সেখানে কাউকে যেতে দেবে না, তাই লালবাজারে তুলে নিয়ে গেছে। আমরা এটা নিন্দা করছি। পুলিশকে বাদ দিয়ে দিলে এই সরকারের কোনো অস্তিত্ব নেই। সমগ্র আসানসোলেও তাই। এই জেলাতেও পুলিশকে যদি আপনি থানার ভিতরে ঢুকিয়ে দেন, দেখবেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো অস্তিত্ব বলে কিছু থাকবে না। মলয় ঘটকের এত ফুটানি পুলিশটা সঙ্গে আছে বলে, পুলিশ না থাকলে ঘর থেকে এরা বেরোতে পারবে না। তাই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে এখন সবাই মমতা পুলিশ হিসেবেই ডাকে। উনার সরকার প্রি মনসুন কি কাজ করেছে? কেন ডিবিসির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে পশ্চিম বর্ধমান সহ পুরুলিয়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় নিষ্প্রদীপ হয়ে যাবে, রেল এবং কারখানাগুলি সব বন্ধ হয়ে যাবে। সাহস থাকলে করুন না। এইসব অপদার্থদের কথা, উনাদের আচরণটা হচ্ছে বিরোধী দলের মতো। উনাদের 14 বছর ভোগ করলেন। রামচরিত পাসওয়ানরা যে 50 কোটি টাকার বাড়ি তৈরি করলেন, নরেন 1000 কোটির মালিক, হরে রাম আর তার বেটা মিলে 500 কোটির মালিক। বিধানের কত টাকা বিধান নিজেই জানে না। মলয় সপরিবারে সবংশ কত ফ্ল্যাট করেছে শঙ্করের নামে, তার পিএর নামে, সব তালিকা আছে। 15 বার ডেকেছে দিল্লিতে। তারপরে 14 বছর পরে এই গাওনা গাইলে তো কেউ শুনবে না। ভাই বীজ আমি দুর্গাপুর যাচ্ছি, চলো। पुरुलिया के बलरामपुर में सुबह 7 बजे एक भयानक हादसा हुआ। लॉरी और बोलेरो की आमने सामने की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। घटना से इलाके में काफी मातम छा गया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पता चला है कि बोलेरो में चालक समेत 9 लोग सवार थे और शादी से झारखंड के निमड़ी जा रहे थे। पुरुलिया जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 18 पर नामशोल प्राथमिक विद्यालय के पास सड़क के मोड़ पर कार की लॉरी
लॉरी से आमने सामने की टक्कर हो गई। बोलेरो पलट गई, वहीं लॉरी का नियंत्रण खत्म हो गया और वो सड़क किनारे पलट गई। टक्कर लगने से कार के अंदर कई लोग कुचले गए। घटना की खबर मिलते ही बलरामपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुरुलिया के पुलिस अधीक्षक अभिजीत बैनर्जी भी मौके पर गए। घायलों को रेस्क्यू कर बंशगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी 9 को मृत घोषित कर दिया। ঘটনাটা ঘটেছে মোটামুটি একটু আগে, আধা ঘন্টা আগে। পুরুলিয়া দিকে গেলে একটা বোলেরো আসছিল, আর এই দিক থেকে সম্ভবত এই গাড়িটা আসছিল এলপি, আর এই মুখামুখি এইখানে ধাক্কা লাগার পরে বোলেরো যতজন প্যাসেঞ্জার ছিল মনে হয় ডেটেই হয়ে গেছে সব কটা, 9 জন। তারাকে সঙ্গে সঙ্গে এই বলরামপুর থানা থেকে পুলিশ আছে, ওরাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হসপিটাল থেকে। জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে এই জাতীয় সড়কে প্রায়ই তো ঘটে যাচ্ছে। এইখানে কিছুদিন আগে দুদিন আগে একটা মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট হলো, 2 জন এখানে ডেথ হয়ে গেল। তো এই জায়গাটাই, এই সামনেটাই প্রায় ঘটেই চলছে একটার পর একটা অ্যাক্সিডেন্ট। যাই হোক, এটা রোডটার দোষে এই যান চলাচল অতিরিক্ত হওয়ার জন্যে ঠিক বুঝতে পারছি। আমরা সবাই চাইছি যে এই রোডটা মানে সেপারেট দুটা করে দেবো, মাঝে একটা বিট দিয়ে দুটা যেমন আলাদা করে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, এইটাই 4 লাইন যেমন হয়ে যায়। 4 লাইন না হওয়ার জন্যেই অ্যাক্সিডেন্টগুলো মনে হয় ঘটছে, আমার মনে আছে। নাহলে এত অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কথা নয়। বরযাত্রী গাড়ি ছিল সম্ভবত, মনে আছে। 9 জনেই স্পট ডেট হয়ে গেছে। আগে এরকম বহুবার হয়েছে, সামনেটা হয়েছে, এইখানে একবার হয়েছে রাতের দিকে, মোটর সাইকেল ওটাও স্পট হয়ে গেছে একদম। মানে গাড়িগুলো তো খুবই স্পিড থাকছে, রোডটাও ফাঁকা, এই কারণে মনে হয় অ্যাক্সিডেন্টগুলো বেশি ঘটছে। তবে আমার মনে হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটার কারণটাই 4 লাইনটার জন্যে, 4 লাইন না করার জন্যই অ্যাক্সিডেন্টগুলো বেশি ঘটছে। सीताराम महातो। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। पश्चिम बर्धमान और दक्षिण बंगाल में मंगलवार से भारी बारिश हो रही है। पंचित और मैथन के बाद डीवीसी ने दुर्गापुर बैरज से 41,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। शुक्रवार को सिंचाई मंत्री मानस भुइयां ने बैरज के नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण किया। 45 दिनों में मरम्मत पूरी हुई, शेष कार्य बरसात के बाद होंगे। मंत्री ने केंद्र पर बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाया, कहा कि कोई आर्थिक सहायता
नहीं मिली, जिससे ड्रेजिंग कार्य रुका है। डीवीसी राज्य विवाद पर टिप्पणी से बचते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्थिति पर नजर रख रही हैं। तेनूघाट से पानी नियंत्रण के लिए बातचीत हुई है। बैरज की गहराई कम होने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। वैकल्पिक पुल की मांग पर विचार चल रहा है। निरीक्षण में सांसद अरूप चक्रवर्ती, विधायक आलोक मुखोपाध्याय और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। বিতর্কটা এখানে করছি না। আজকে আমি দেখতে এসেছি এই ব্রিজটা কতটা আমরা করতে পেরেছি। 1 মে আমরা এটা শুরু করেছিলাম, 15 জুন শেষ করেছি। মাঝখানে 6 দিন বৃষ্টির জন্য একটু কষ্ট হয়েছে আমাদের কাজে। আরো টুকটাক কাজ বাকি আছে, সেগুলো হয়ে যাবে। হায়দ্রাবাদ থেকে রাবার সিল আসছে, ওগুলো করে দেবো, কংক্রিটের জায়গাগুলো। আর আমরা 1.5 মাস জলটা আটকে রেখেছিলাম দুর্গাপুর ব্যারেজে। এখন সেইটা পাঞ্চেত, মাইথন আর দুর্গাপুর ব্যারেজ, এটা আমরা একটা সেল করেছি, কোঅর্ডিনেটেড ওয়েতে কন্ট্রোল করা হচ্ছে, যাতে জল ছাড়ার প্রেক্ষাপটে মানুষের ক্ষতিটা না হয়। ইতিমধ্যে উপরি বৃষ্টির জলে প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছে, প্রচন্ড। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং ঝাড়খণ্ড, ওই ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সব জল নামছে। তেনুঘাট নিয়ে আমাদের বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন, আমার দপ্তর বলেছে, আমি বলেছি, উই আর ট্রাইং আওয়ার লেভেল বেস্ট যাতে তেনুঘাটকে কন্ট্রোল ওয়েতে অপারেট করা যায়। এছাড়া আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নজর রেখেছেন পাঞ্চেত, মাইথন এবং দুর্গাপুর ব্যারেজের জল ছাড়া। আজকে 41,000 কিউসিক জল ছাড়া হচ্ছে। আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেখুন, আমার সচিব মনীষ জানকে নিয়ে হুগলিতে বসে আছে, টিম আসছে। আজকে আমার বাঁকুড়াতেও আমাদের সচিবরা আসছেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে। আমিও ছুটে এসেছি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के चैम्बर में आज एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद वितरण, बाल श्रम पर नियंत्रण और गौरवी नदी की सफाई को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेयर ने बताया कि जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को नगर निगम क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इसके साथ ही बाल श्रम रोकने के लिए 10 में से 8 बोरों में कमेटियों का गठन हो चुका है। शेष 2 बोरों में अगले सप्ताह बैठक बुलाकर कमेटी गठन का कार्य पूरा किया जाएगा। मेयर ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाल श्रम पर पूर्ण रोक के निर्देशों को लागू करने के लिए नगर निगम प्रतिबद्ध है। गारवी नदी की सफाई को लेकर मेयर ने कहा कि नया बोर्ड इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है। नदी के 600 मीटर किनारे पर 2 करोड़ रुपए की लागत से बाउंड्री निर्माण शुरू किया गया है, जो सृष्टिनगर क्षेत्र में होगा। खाली स्थानों को बाउंड्री से घेरकर नदी को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा। আগামীকাল থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীঘায় যে জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেখানকার প্রসাদ যে বিতরণের জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গে বলেছিলেন, আগামীকাল থেকে আসানসোল কর্পোরেশনের 106টা ওয়ার্ডে 10টা বোরোতে চালু হবে। তো সেখানে 8টা বোরো আগামীকাল থেকে হবে এবং উল্টি 3টে ব্লক আছে, ওদেরকে যেমন সেকেন্ড ডে আছে আর ওদের ডেটগুলো দেওয়া আছে, এখানে লিস্টে দেওয়া আছে। তো সেভাবে বিতরণ করা হবে। সেটার জন্য কীভাবে কাল থেকে চালু করবো, কীভাবে সব প্রিপারেশন করা হবে। গাড়ুই নদী অলরেডি আমাদের সৃষ্টিনগরের পর থেকে একটা নতুন করে আমরা প্রায় 2 কোটি টাকার একটা বাজেট দিয়ে আমরা কাজ চালু করেছি
এবং ওটা কমপ্লিট হলে আবার পরপর আমরা যেটা বোর্ডে বসার পর বলেছিলাম যে আসানসোল কর্পোরেশনের অন্তর্গত যতটা আমাদের গাড়ি নদীটা পড়ছে পুরোটাকে আমরা বাঁধিয়ে দেবো। তো সেটা আমরা অলরেডি একটা চালু করেছি প্রায় 600 মিটারের মতন, আবার নেক্সট একটা চালু করবো আমরা টেন্ডার করে। তো যেখানে ফাঁকা পাবো সব জায়গাগুলোকে আমরা বাঁধিয়ে দেবো। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। दुर्गापुर के फरीदपुर ब्लॉक झांझरा कोलिरी के तहत एक नए पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम सिंदूर उद्यान रखा गया है। इस पार्क का उद्घाटन केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। इस अवसर पर ECL के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। ECL सूत्रों के अनुसार इस पार्क के निर्माण पर 10.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। पार्क को 2 महीने के भीतर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि पार्क में प्रवेश निःशुल्क नहीं होगा और आगंतुकों को प्रवेश शुल्क देना होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर शुक्रवार से सलानपुर ब्लॉक में द्वारे राशन योजना के तहत घर घर दीघा के जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद पहुंचाया जा रहा है। शुक्रवार को रूपनारायणपुर पीठाक्यारी क्षेत्र के एक राशन दुकान पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर देवांजन विश्वास ने महाप्रसाद के पैकेट वितरित किए। इस दौरान सालानपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, जिला परिषद कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान, इसके अलावा समाज सेवी भोला सिंह सहित अन्य मौजूद थे। देवांजन विश्वास ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर चरणबद्ध तरीके से ब्लॉक के प्रत्येक घर तक जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। शुक्रवार को तृणमूल छात्र परिषद के तत्वाधान में दुर्गापुर सरकारी कॉलेज में एक जॉब फेयर का आयोजन किया गया। पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने इस जॉब फेयर में हिस्सा लिया। तृणमूल छात्र परिषद के विपुल वर्धन ने बताया कि इस जॉब फेयर के माध्यम से छात्र छात्राओं को रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है। लगभग 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से कुछ को बाहरी कंपनियों में नौकरी मिलेगी। 7 कंपनियों ने इस फेयर में भाग लिया। अन्य कॉलेजों से 50 से 100 छात्र आए हैं। इससे पहले भी जॉब फेयर सफल रहा था, जिसमें पहली बार
एक कंपनी में 110 छात्रों को नौकरी मिली थी और बड़े पैमाने पर आयोजित फेयर में करीब 400 छात्रों को रोजगार मिला था। तृणमूल छात्र परिषद का लक्ष्य दुर्गापुर सरकारी कॉलेज के छात्र छात्राओं को नौकरी दिलाना है। आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भर्रारा ने आज रामबंधु तालाब क्षेत्र के गुरु नानक नगर में एक नए हॉल और अन्य भवनों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि नई बिल्डिंग के निर्माण में गुरदीप सिंह छाड़ा, संजोग सिंह भरारा और सिख समाज के युवाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नई बिल्डिंग में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कक्षाएं, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग बाथरूम और बिजली के उपकरण शामिल है। अमरजीत सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य इस स्कूल को CBSE से अनुमोदित कराना है, जिसके लिए भवन को उसी मानक पर बनाया गया है। उन्होंने सिख समाज के युवाओं के बिना डोनेशन के योगदान पर गर्व जताया। आज मेरे समझ से आसनसोल की संगत और आसनसोल की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। ये कैसे कि जितने हमारे पास रिसोर्स हैं, जितने पास हमारे पास आमदन का जरिया है, वो इतना सीमित होने के बावजूद इतना बड़ा स्ट्रक्चर 4,500 स्क्वायर फीट का, जिसमें इतनी क्लासें, बाथरूम लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, ये सारे का सारा नया ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन करना, इसकी पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइटिंग, पखे, नीचे प्रिंसिपल रूम, अभी मैं नीचे होके आया हूँ जहाँ अरदास हुई है। मेरे समझ से अच्छे अच्छे स्कूलों के प्रिंसिपल के रूम उतने सुंदर नहीं होते जितना इन्होंने बनाया है। हम जो अपने आप को सीनियर कमेटी कहते हैं, इन लड़कों को अपनी तरफ से धन्यवाद बोलते हैं कि इन्होंने बहुत समय, टाइम और निकाल के ये जो पूरी इमारत खड़ी की है। इससे पूरे आसनसोल के सिख समाज की इज्जत बहुत बढ़ी है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।